Abhay, Abhay, Yes, yes, sir. switch on your video bit. Okay, sir. Okay, we will just wait for a minute and then we will start. Okay, we will be continuing with the Bayes theorem today. Okay, Yes. so in the meantime, I'm hoping others will join. But let's get started with a very quick revision of what the Bayes theorem is. Okay, just yeah. So. To understand Bayes theorem, right? What is Bayes theorem? Bayes theorem is to find the reverse conditional probability. Okay, so usually what we were doing was we were finding the probability of A given some event. Okay, now if we have to reverse it, right? If we have to find this, okay, which means that in this, what was this? A was the effect, okay, and E was the cause. But now if we have to find what is the probability of the cause given the effect, okay, so that we find using the Bayes theorem. Okay, so what is Bayes theorem? It also uses the theorem of total probability. So we state it like this: we have to find, let's say, a certain event's probability given the outcome. Then what do? We use the reverse probability. इसका जो उल्टा कंडीशनिंग है हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, probability of EI. And then we have to, in the denominator, put the total probability of A, which we usually do not have. Okay, usually we do not have the total probability available to us. So what do? We calculate it by adding up all the conditional probabilities of A. Summation of this. Okay, so this is the Bayes theorem. Okay, we did one or two examples of this already in the previous class. We will continue with more examples. Okay, so this example, let's look at this example, and this is one of the most common use of the Bayes theorem. Okay, and this actually is also very interesting use because the result generated by this is absolutely remarkable. Okay, जो सोनाली एक्सक्यूज मी सर, सोनाली कैमरा ऑन कीजिए बेटा, कैमरा ऑन कीजिए बेटा अपना. okay, so ठीक है, तो इसमें जो हमारा रिजल्ट आएगा वो बहुत रिमार्केबल है, वो काउंटर इंट्यूटिव भी है. यूजुअली especially when we are talking of a rare disease. Okay, so most of the questions will talk about rare diseases in this because then the result is absolutely remarkable. ठीक है, एक बार क्वेश्चन को समझते हैं और ये देखते हैं कि how the Bayes theorem can be used to find the real probability of somebody suffering from a disease. Okay, so of people having HIV,
Okay, 90% of the test detect the disease, but 10% go undetected. Okay, so if what does this first sentence mean? Of people having HIV, 90% of the test detect the disease, but 10% go undetected. इसका मतलब ये है कि अगर हम 100 लोग ऐसे, हमारे पास 100 ऐसे पेशेंट्स हैं जो HIV इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, अभी हमें नहीं पता कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं, बट मान के चलिए कि वो 100 के 100 इन रियलिटी इन्फेक्टेड हैं, और हमारे पास एक टेस्ट अवेलेबल है, हमने वो टेस्ट किया। जब हमने वो टेस्ट किया तो टेस्ट का रिजल्ट 90 के लिए तो पॉजिटिव आया और 10 के लिए नेगेटिव आया, ठीक है। और ये जो 10 के लिए नेगेटिव आया, एक्चुअली इनको भी HIV रियलिटी में था, लेकिन टेस्ट क्या बताता है कि इनको नहीं है, मतलब कि ये जो है ये तो सही रिजल्ट है, ठीक है, और ये वाला जो रिजल्ट है ये गलत रिजल्ट है। ओके, तो ये गलत रिजल्ट ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV। अब ऐसे लोग जिनको HIV एक्चुअली नहीं है, अब ऐसे मान लीजिए हमने 100 लोग लिए, ये अलग लोग हैं, अब इनके ऊपर टेस्ट परफॉर्म किया तो 99% वर जज टू बी HIV नेगेटिव, यानी ये सही रिजल्ट है, उनको HIV नहीं था और टेस्ट ने कहा कि इनको HIV नहीं है, but 1% are diagnosed as showing HIV पॉजिटिव। तो ये गलत रिजल्ट आ रहा है, 100 में से एक व्यक्ति जो है उसको ये कहा जा रहा है कि भाई तुमको HIV है, जबकि उसको एक्चुअली नहीं है। From a large population of which only 0.1% have HIV. Now this only 0.1% have HIV, यानी कि कितना, 0.1% का मतलब क्या होता है, 1000 में से एक, ठीक है, तो केवल 1000 में से एक व्यक्ति को ही HIV पॉजिटिव होता है। ये हमारा जो डेटा कलेक्ट किया, मतलब मान लीजिए फ्रॉम अ वेरी लार्ज सैंपल, हमें पता चला 1000 में से एक को ही HIV होता है। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ रेयर डिसीज। ओके, इट्स अ रेयर डिसीज, ये 1000 में से एक ही व्यक्ति को होती है। 1 person इज सिलेक्टेड एट रैंडम। ये अब एक व्यक्ति को हम लेके आए जिसका हमें नहीं पता है से HIV है या नहीं है, जो भी है, एकदम अननोन एक बंदा है, उसके ऊपर हम टेस्ट करते हैं, द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स हिम एज HIV पॉजिटिव, और उसका जो रिजल्ट है वो HIV पॉजिटिव आ जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द पर्सन एक्चुअली हैज HIV, ठीक है। तो अब देखिए, क्या ये टेस्ट अच्छे टेस्ट हैं? ये 90%, एक तरह से तो 90% हमें सही बता रहा है, दूसरे में जब HIV नेगेटिव पता चलता है तो 99% हमें सही बता रहा है। तो ये ऐसा लगता है कि ये टेस्ट काफी रिलायबल है, ठीक है, ये काफी रिलायबल टेस्ट हमें लग रहा है। और अब ये एक व्यक्ति है जिसका HIV पॉजिटिव आ गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको सच में HIV है? अगर इस डेटा को कोई देख के पढ़ेगा तो वो कहेगा कि 90% के आसपास प्रोबेबिलिटी है उसकी, ठीक है ना, क्योंकि देखा जाए तो HIV पॉजिटिव में से वो 90% को सही बताता है और केवल 1% को नेगेटिव में गलत बताता है, तो 90 के आसपास होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी। दिस इज व्हाट एनीबॉडी विल थिंक, ठीक है। बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट्स आल्सो गेट सम अदर टर्मिनोलॉजीज राइट। Okay, now what is this 90% mean? Okay, 90% का क्या रिजल्ट आ रहा है, इनको ऑलरेडी HIV है और टेस्ट बता रहा है कि 90% ये बता रहा है कि उनको सच में है, तो ये जो है ये हुआ हमारा ट्रू पॉजिटिव, ठीक है, ये नंबर है ट्रू पॉजिटिव। सो ट्रू पॉजिटिव क्या है हमारा 0.9, अगर हम इसको
फ्रैक्शनल फॉर्म में रख के 90% इज 0.9। ठीक है, तो ये ट्रू पॉजिटिव है। और ये क्या है, 10% गो अनडिटेक्टेड, यानी 10% को क्या दिखाया, नेगेटिव आया रिपोर्ट, लेकिन हकीकत में वो पॉजिटिव है। तो ये हमारा नंबर है फॉल्स नेगेटिव। ओके, ये है 0.1। ठीक है, अब ये नंबर क्या, ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV 99% आर टेस्टेड टू बी नेगेटिव, यानी ये ट्रू नेगेटिव है। तो ट्रू नेगेटिव क्या है हमारा नंबर, 0.99। okay, this is a true negative, or but 1% are diagnosed to be positive, which is false positive. Okay, is 0.01। ओके, तो ये ना आपको मीनिंग ये वर्ड्स के समझ आने चाहिए, क्वेश्चन में ये वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं। ठीक है ना, कि ट्रू पॉजिटिव किसे बोलते हैं, फॉल्स नेगेटिव क्यों किसे बोलते हैं। ठीक है, ये सब वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल बेस थ्योरम का एप्लीकेशन है, दैट्स व्हाई आई एम स्पेंडिंग टाइम इन एक्सप्लेनिंग दिस। ओके, सो अब हमारे को इस डेटा के बेसिस पे, ये हमारे पास अवेलेबल डेटा है, और एक, ठीक है, कि प्रिवलेंस ऑफ द डिसीज या रेयरिटी ऑफ द डिसीज, कि ये कितने लोगों को डिसीज होती है, वो 1 in 1000 है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिसीज हैपनिंग वो क्या है, ठीक है, वो है 0.001। एक्सक्यूज मी सर, यस, यस मैम। शिवम और अभय कैमरा ऑन कीजिए बेटा अपना। बेटा एक बार ऑन कर लिया तो अभय आपने बंद मत करिए। अभय आपने अभी भी ऑन नहीं किया बेटा। अभय सर नहीं पढ़ाएंगे तब तक आपको, आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे, आप क्यों अपनी पढ़ाई बेकार करते रहते हो। अबे आपका सर पहले से कंटिन्यू ऑन कर, था। हाँ ठीक है बेटा, एक बार ऑन कर लिया कंटिन्यू तो ऑफ मत करिए उसको। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये रेयर डिसीज बता रहा है हमको कि केवल 1000 में से एक को होता है। ठीक है, तो ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, इन डेटा पॉइंट्स के साथ हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसको डिसीज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, नेगेटिव आया तो डिसीज ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड ऑल द 4 कॉम्बिनेशंस वी कैन फाइंड। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे अब हम निकालने की कोशिश करते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV जब उसका टेस्ट पॉजिटिव आया। तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी कौन सी निकालनी है, उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टर्म में लिखते हैं। क्या कौन सी प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं, बताइए। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन हैविंग द डिसीज, ओके, गिवन दैट ही इज टेस्टेड पॉजिटिव। Okay, so probability that he has disease when the test is positive. Okay, तो बेस थियरम में ये कैसे लिखेंगे हम, it is the probability of the test being positive when the person has the disease into probability of a person having the disease। और नीचे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी, ये सेम आ जाएगी पहली टर्म तो, यस सर, और दूसरी टर्म क्या आएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट सर वो नेगेटिव हो डिसीज। वो, हाँ, दूसरी टर्म ये आएगी हमारी कि प्रोबेबिलिटी दैट ही इज टेस्टेड नेगेटिव व्हेन ही हैज द डिसीज, यस सर, राइट, एंड इनटू प्रोबेबिलिटी, सर सर उसको नो नो, डिसीज हो। नहीं नहीं सर, ठीक है,
तो probability of him getting the disease when positive when he has the disease, right? और नीचे ये एक टर्म आ गई। दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि he is tested positive when he doesn't have the disease. Okay, so he is Okay, sir. tested positive when he doesn't have the disease into probability of not having the disease. Okay, this is the total probability of him having been tested positive, whether he has the disease or not having the disease, right? So partitioning is on whether he has the disease or not. ठीक है, तो ये हमारा बेस थ्योरम का फॉर्मूला बन गया यहाँ। Once we form this, then it is just a question of putting the values. So what is the probability of him being positive when he has the disease? ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट हो रहा है और उसको डिसीज भी है, वो ट्रू पॉजिटिव है, राइट? तो वो क्या हुआ? 0.9, ट्रू पॉजिटिव इज 0.9 into probability of having the disease in general, which is 0.001. Yes, sir. Okay, तो पहली टर्म सेम है, तो वो हम 0.9 into 0.001. अब दूसरी टर्म क्या है? प्रोबेबिलिटी of him being tested positive when he does not have the disease. यानी कि ये किस तरह का पॉजिटिव है? फॉल्स पॉजिटिव, राइट? 0.01. 0.01, ठीक है, Yes, sir. into probability that he does not have the disease, right? So probability of not having the disease is, वो लिख लेते हैं, is 1 minus probability of having the disease. So वो Yes, sir. क्या? 0.999. Okay, तो 0.999. 99. So now let's try to solve this. What we could do is, I could definitely get rid of these straight away. Okay, and so it will become 0.9 by 0.9 plus 9.9. Okay. Yes, sir. So it is 0.9 by 10.89. 89. Okay. And so we could think of this as, for rough calculation, I'll just take it as 11. Okay. So this will come to be 0.08. निखिल बेटा कैमरा ऑन कीजिए अपना। Okay. निखिल Nikhil Nagar. Okay, he has left. लेफ्ट हो गया है। हाँ, ठीक है. So this is coming to be roughly 0.082. Okay, which is what? 0.082 को परसेंटेज में भी लिख लेते हैं समझने के लिए, 8.2% होता है। ओके, तो ये देखिए, ये एक रिमार्केबल रिजल्ट है। जब हम देखते हैं कि टेस्ट कहीं पे तो 90% करेक्ट दे रहा है, कहीं 99% करेक्ट दे रहा है, लेकिन जब हमने उसका टेस्ट किया एक रैंडम आदमी का और वो पॉजिटिव आता है, तो उसकी डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी मात्र 8.2% ही होती है। ओके, 8.2 या 8.3 जो भी एग्जैक्ट नंबर आएगा, ठीक है। तो that is a very low probability, right? While the tests look so promising, the chances that actually he has the disease is so low. ओके, ये एकदम काउंटर इंट्यूटिव रिजल्ट है, ठीक है, और ये बेस थ्योरम का एक सबसे पावरफुल यूज केस भी है।
ठीक है, तो ये डिसीज वाले क्वेश्चंस आपको एक तरह से टेम्पलेट की तरह करने आने ही चाहिए। ओके, तो 2-4 क्वेश्चन इसके अलग से जरूर कर लीजिए एक साथ बैठकर, ताकि ये दिमाग में बैठे। ये बहुत यूजफुल यूज केस है ऑफ बेस थ्योरम। ओके, फाइंडिंग द ट्रू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ डिसीज और नॉट हैविंग अ डिसीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है। Give me a minute. The screen sharing has crashed again for some reason. I'll have to restart it. Give me a second. Okay, so I'll just go ahead and share it. So now let's do the other very important use case of Bayes theorem. Okay, what is that? That is about that it's a production scenario now. Okay, and in the production scenario, the useful use case is that we have multiple machines which have different defect producing rates. ठीक है, तो ये जो मशीन्स हैं, ये कोई कम डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाती है, कोई ज्यादा बनाती है, और फाइनली जब हम एक प्रोडक्ट लेते हैं वो डिफेक्टिव है मान लीजिए, तो हमें अब ये पता करना है कि ये कौन सी मशीन से आया होगा। ओके, सो ये प्रोडक्शन रिलेटेड है, एक फार्मा रिलेटेड केस है, ये प्रोडक्शन इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रिलेटेड है, और ये भी सर एक्सक्यूज मी सर, निखिल बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है जो आप नहीं करते हो कैमरा ऑन? बेटा बार बार देखो, सर भी कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्ब होता है, मैं बीच में बोलती हूँ, प्लीज आप कैमरा मत क्या कीजिए बंद। सर कंटिन्यू कर लीजिए। और दूसरी चीज क्या है ना कि देखिए कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे अभी क्रैश हो गया, तो वो 2 स्टूडेंट्स छोड़ के चले गए, वो टेम्परेरी इश्यू होता है, वो यू शुड ऑलवेज वेट। एंड अगर इश्यू फिक्सेबल नहीं होगा, राइट, किसी रीजन से, तो आई विल टेल यू कि नहीं नहीं अब आप लीव कर जाइए, वी विल कंटिन्यू द क्लास सम अदर टाइम, राइट। तो कभी ऐसा माइनर प्रॉब्लम, इट टुक मी लेस देन अ मिनट टू कम बैक, उसमें 2 स्टूडेंट छोड़ के चले गए, ऐसा मत करिए, इट इज योर ओन लॉस, राइट, वो मत करिए, यू शुड वेट फॉर इट टू बी फिक्स्ड। ठीक है, चलिए, तो ये सेकंड हमारा बहुत यूजफुल यूज केस है। ठीक है, तो ये हम अब किस तरह करेंगे, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है एक्चुअली, इसमें कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं होता है, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बॉक्स मल्टीपल बैग में से अंधेरे कमरे में बॉल निकालने जैसा ही क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स ट्राई टू डू दिस वन। In a factory which manufacture bolts, machine A, B, C manufacture respectively 25%, 35% and 40% of the bolts. तो ये इसका क्या मतलब है कि कितने परसेंटेज बोल्ट्स वो बनाते हैं, राइट। और उसका दूसरी प्रोबेबिलिटी की भाषा में क्या मतलब है कि मान के चलिए हम एक कोई भी बोल्ट उठाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, और मान लीजिए एट द एंड ऑफ द डे 100 बोल्ट बने हैं, तो मैं उनमें से कोई भी रैंडमली एक बोल्ट उठा लूं, तो वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए से बना होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन ए में बना होगा। केवल इतने बेसिस पे, यहां से यहां तक के बेसिस पे आपको सोचना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 out of 100 bolts is made on machine A, क्योंकि मशीनें 25% बनाती है, तो प्रोबेबिलिटी इज 25% और 0.25।
राइट। तो अब लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is 0.25, probability of being made on machine B is 0.35, and probability of being made on machine C is 0.4. ठीक है। Of their output, 5, 4 and 2% are defective bolts. ठीक है, तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5% है। किसकी? ए की। तो यानी probability of the product being defective given that it is made on machine A is 5%, which is 0.05. Similarly, probability of the product being defective given the probability it is made on B is 4%, and Excuse me, probability, sir. yeah, yes ma'am. निखिल नागर, निखिल, बेटा क्यों ऐसा कर रहे हो? मतलब how is it helping anyone? Shivam, your camera is also directed elsewhere. It's directed on your notebook. ठीक है, नोटबुक पे आप डायरेक्ट तब करिए अगर आपको मुझे कुछ दिखाना है जो आपने लिखा है, ओके? Otherwise, just keep it on your face, right? That's the best way. Probability of the product being defective, it was made on C, is 2%, यानी 0.02. ठीक है, एक चीज मैं आपको फिर बता देता हूं, एक कॉमन मिस्टेक जो और होती है स्टूडेंट से, वो ये होती है कि जैसे कि 5% है, उसको ना कई बार जल्दबाजी में 0.5 लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी, राइट? वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। परसेंट और प्रोबेबिलिटी के बीच में जब हम शिफ्ट करते हैं तो वो थोड़ा प्रैक्टिस दिमाग में बैठी होनी चाहिए, ठीक है? A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. So what is the probability that it is manufactured by the machine B? तो अब हमें निकालना है कि एक प्रोडक्ट, ओके, we have to find that it is made on B given it is defective. ओके, सो बेस थ्योरम डायरेक्टली लगेगी, बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन क्वेश्चन है, तो वी विल राइट इट लाइक दिस, एंड डिनोमिनेटर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव, व्हिच इज probability of defective on B, probability of defective on C. Okay, so now we just have to put the values. Probability of defective on B is 0.04 into this probability. ओके, अब नीचे की टर्म्स लिख लेते हैं, ये बस इनके मल्टीप्लीकेशंस लिखने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 0.05 इंटू 0.25 प्लस नेक्स्ट टर्म तो ऊपर वाली ही आएगी, एंड देन 0.02 Yes, sir. Into 0.4. राइट, दैट्स इट। ओके, बस इसको अब हमें सॉल्व करना है। ओके, इसमें हमें कोई रिमार्केबल रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है? और मैं ये बात क्यों रिपीट कर रहा हूं, फाइनली तो जो आंसर आएगा आएगा। ये थोड़ा सा ये नॉलेज आपके लिए बहुत यूजफुल होगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपको ना एक थोड़ा क्वेश्चंस जब आप करते हैं प्रोबेबिलिटी के, ठीक है, तो जो डेटा गिवन है और जो रिजल्ट आता है उसको अपने दिमाग में बिना मैथ्स के यानी कॉमन सेंस से कोरिलेट करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि जब आपका रिजल्ट अगर बहुत गलत आएगा एग्जाम में, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है? अब वो इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं उस चीज को समझिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से सबसे ज्यादा स्टूडेंट घबराते हैं एग्जाम्स में। उसका सबसे बड़ा कारण केवल ये है कि इसको टेस्ट चेक नहीं कर पाते हैं,
कि आंसर सही है या गलत है ये ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं बता पाते। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसमें, उसको कैसे चेक करेंगे? देखिए, अब हमको ये देखना है कि जो ये वाली प्रोबेबिलिटी है इसकी, यानी कि किससे बना होगा, वो 25% है, 35% है, 40% है। तो सबसे ज्यादा चांसेस क्या है? मतलब जो बी पे बनने की प्रोबेबिलिटी इज रफली 1/3 ओनली, राइट? विच मीन्स इक्वल प्रोबेबिलिटी है, कोई हमें वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो हम ये डेटा यहाँ पे देखेंगे, राइट, वो ये है कि ए जो कम बनाता है उस पे ज्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनते हैं, जो सी है जो ज्यादा बनाता है उसमें कम डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनते हैं, और जो बी है उसमें बीच के बनते हैं, राइट? ये डेटा हमें रफली ये शो कर रहा है कि जो बी की प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए वो किस तरह की आनी चाहिए, किस रेंज में आनी चाहिए। हाफ और 1/3 के बीच में कहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी जब आप इसको सॉल्व करते हैं हाफ या 1/3 के आसपास आती है इन नंबर्स के, तो चांसेस हैं कि आपने आंसर सही निकाला होगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा धोखा देने वाली प्रोबेबिलिटी जैसा रिजल्ट नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट अचानक ऐसा आ जाए इसमें कि जैसे 2%, वो नहीं होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, जो हमने इससे पहला क्वेश्चन किया, ठीक है, उसमें किस चीज की वजह से आंसर बहुत अजीब आता है वो समझ लीजिए। वो आता है केवल और केवल इस डेटा की वजह से। देखिए, ये जो डेटा है ये इस पूरी स्थिति को उलट पुलट करके रख देता है। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी ये डिसीज होने की 50% होती मान के चलिए, ठीक है, तो गिवन दीज टेस्ट्स जो आंसर है वो 90% के आसपास ही आता, कहीं 90 और 99 के बीच में कहीं रिजल्ट आ जाता आपका। लेकिन ये डिसीज रेयर है, इसीलिए इतना कम प्रोबेबिलिटी आता है पॉजिटिव होने का। तो क्वेश्चन में देखिए कि क्या डिसीज रेयर है। 99% चांसेस हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा रेयर डिसीज दी जाएगी, और अगर वो रेयर डिसीज है तो आपका आंसर पॉजिटिव होने का कम आएगा। ठीक है, तो जब आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा ये अपने दिमाग में बिठाइए कि क्या रिजल्ट आना चाहिए। ओके ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the next question? It is again a very typical question. A doctor सर is निखिल ने फिर से कैमरा बंद कर दिया है। निखिल, बेटा बार बार नहीं रिमाइंड कराना पड़े, so he has left also now. Okay, so a doctor is to visit a patient. From the past experience, it is known that the probabilities that he will come by train, bus, scooter, or by other means of transport are respectively this, and this, right? So ये सब हमारी probabilities किस चीज की है कि वो किस तरह से आएगा, right? And if we add it up, right? What should we get if we add it up? वो कहीं ना क्या सर? कहीं इन सबको हम चारों को ऐड करें तो क्या मिलना चाहिए हमें? सर 1 मिलना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी तरह से वो आएगा। कहने का मतलब ये है the probabilities that he will be late are this, this and this. ओके, यानी कि अगर वो इस मोड से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, इस मोड से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, इस मोड से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी ये है। But if he comes by other means of transport, he will not be late. यानी probability of being late if he comes by this mode is 0. Okay. When he arrives, he is late. What is the probability he came by train?
ओके तो सबसे पहले अपनी सारी प्रोबेबिलिटीज लिखनी है एंड देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके सो ट्रेन, वी हैव बस, स्कूटर एंड अदर मीन्स all. दे रहा हूँ, बस रुक जाओ, 3 मिनट रह गए. ठीक है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/10 है, इसकी 1/5 है, 1/10 है और 2/5 है. अब इसके नीचे ये किसकी है प्रोबेबिलिटी, उसने कौन क्या? सा ओके अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम बीइंग लेट लिख लेते हैं, लेट होने की प्रोबेबिलिटी लिखिए है. बेटा, यदि कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है या कोई रीजन है, आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो, तो आप सर को बता दीजिए. लेकिन अब मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, सर भी डिस्टर्ब होते हैं, ऐसे कंटिन्यू नहीं पढ़ा पा रहे हैं आपकी वजह से. आप प्लीज कैमरा ऑन रखिए बेटा. कंटिन्यू रखिए सर. ओके तो ये लेट होने की हमारी प्रोबेबिलिटी, हमसे किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने को कही गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ his coming by train, probability of his coming by train given he is late. So इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, probability that he is late by coming from train with the probability of coming by train, and नीचे इसी तरह की probabilities का sum. Probability of him late coming by bus into probability of coming by bus plus probability of him late given coming by scooter into probability of a scooter plus, okay, the last term will be 0, multiplication of this and this, but I'll just write it what it will be, probability of late by other means into probability of. शुभम अपने को म्यूट कीजिए बेटा, बहुत नॉइज आ रहा है, म्यूट कर लीजिए. किसके बता दिया ना? शिवम अपने को म्यूट करिए बेटा. तो बस अब इन वैल्यूज को हमें रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ him coming late by train into probability of coming by train, and the same things at the bottom, 3/10 plus probability of being late by bus into probability of coming by bus plus probability of being late by scooter into probability of using the scooter plus probability of being late by other means, which is 0, into probability of using the other means. Okay, so it is 3/40 by 1/4, 3/40 plus 1/15 plus 1/1. Okay, now this calculation could be done. Okay, I'll not do that because there is not enough time left, but this is a simple calculation to be performed. Okay, so you can do this calculation, that shouldn't be tough. Okay, this is the way we do the Bayes theorem questions. Okay, we will do a few more questions to get this straight. Okay, then only a very small part of probability remains. हाँ सर, ये जो अपॉन में 3/40 प्लस 1/15 कैसे आ गया? ये 1/3/40 तो ये है, ये वाली, ठीक है सर, ठीक है. ये 1/3 into 1/5 है. यहाँ सर आपने यहाँ पर 1/6 कर रखा है. कहाँ पे सर, जहाँ पर वैल्यू पुट की है पहली बार. ये अपॉन में 6, अच्छा ये 5 है ये. यस सर. हाँ वो तो 6 जैसा लग रहा है क्योंकि कट गया शायद नीचे से ना, वो 1/5 ही है, यहाँ पे 1/5 है वो प्रोबेबिलिटी.